మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును స్వాగతిస్తున్నామన్నారు వైసీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి. దేశాన్ని నిర్మించేలా డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ ఉండాలన్నారు. డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగాలని చెప్పారు. రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రాంతీయ అసమానతలు రాకూడదని ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి చెప్పారు. విభజన సమయంలో ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పారని, కానీ చట్టంలో లేదని, ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదని ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి అన్నారు. This delimitation process should be a national building process. It should not be such that it should not be a tool to crush the opposition. And regarding women reservation, our party and our leader has always advocated empowering of women. So we welcome the women reservation bill in any form, any time. Madam, I would like to recall as a Chief Minister what Mr. Y.S. Jagannath Reddy did in our state. He gave 50% reservation for women in all the local bodies. He gave 50% reservation for women in all the nominated works. He also gave maximum importance for women in all the social welfare schemes. He proposed, all the 32 lakh outside patas what we have given in the state were registered in the name of women, and all the social welfare schemes were given through the women. Madam, we demand strict and stringent laws for safeguarding the protection, safeguarding the women's security also. Madam, one of the Teludesam MP spoke yesterday regarding protection for women in the state. So I will also add upon this. Recently, Madam, 4 MLAs were caught videotaped, audio taped in Andhra Pradesh harassing women on the they made video calls and harassed women. 4 MLAs were caught. This is not just one vague allegation. If you just type harassment by Andhra Pradesh ruling MLAs on women, you will get all the videos. But I have to pass a advisory also. Open it at your own risk. These are filthy and real horrible. But what happened is that the women who complained, who gathered, demand all the MLAs be taken to task. So apart from empowering women, stringent laws, we demand that, beat anybody, we demand all the MLAs be taken to task. So apart from empowering women, we demand that strict laws be there to protect women also. In principle, we support this bill and we demand the government to consider all our लोकसभा समावेशाలు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. दिख रही कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं. आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम को समर्थन नहीं कर सकते हैं. हाँ, ये अलग बात है. मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है. अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को न चाहते हुए भी कहिए कि वाह, बहुत अच्छा है. तो ये काम तो करिए. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन अगर पास होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा. क्या लोकतंत्र की परिभाषा बता रही हैं? अगर 50% आबादी संसद में बैठेगी तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे, लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था. जो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नस्ताबूद कर देने का काम किया. इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई चाह के भी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है. इस गलतफहमी में नहीं दीजिए. तो सभी उनके जो तर्क थे, कल मैंने सुना बहुत विस्तार से उनका भाषण. थोड़ी मीठी आवाज में बोलती हैं. अभी नहीं हुआ है खत्म मैडम, इतना जल्दी मुड़ी मत हिलाइए, अभी समाप्त बचा हुआ है बहुत कुछ. तो इसलिए कोई तथ्य नहीं है. अब कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, आप लोगों ने भी सुना होगा. प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है कि अगर आपने इसका विरोध किया तो बरसों तक इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है. मैं उनको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं. पंचायतों में 33% का आरक्षण लागू था. 2005 में
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और 2006 में उन्होंने कहा कि 33% हम नहीं मानते हैं, हम इस देश में महिलाओं की आबादी और इस राज्य में महिलाओं की आबादी 50% है, हम 50% पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में आरक्षण देंगे। और सिर्फ उन्होंने पंचायतों में और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकल पद जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, सरपंच का पद होता है, उस पर भी आरक्षण उन्होंने दिया। लालू प्रसाद जी उसमें विरोध में थे, एनडीए की सरकार थी, लालू प्रसाद जी ने उस नीतीश जी के फॉर्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तक बिहार की जन एनडीए, मैंने देखा है बिहार के एनडीए के साथ वहां की महिलाएं 100% खड़ी होती हैं। आप इस बार के चुनाव का वोट निकाल के देख लीजिए। अखिलेश जी, हम आपको कहेंगे, मेरे मित्र हैं, उनसे सचेत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके चक्कर में पड़ के वो गायब हो चुके हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव का आप रिजल्ट देखिए, 84 ऐसी सीट है जिसमें पुरुषों से 10% ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा है और एनडीए के पक्ष में गिरा है। ऐसा क्यों अन्याय कर रही हैं आप मैडम? अन्याय मत करिए, आप ऐसा अन्याय मत करिए। मेघवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उनकी पार्टी का टाइम दे दीजिए, इधर बोलिए मेघवाल जी। अब 2023 से मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उस समय से इस देश की मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही है कि मुझको कब मौका मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने आज उनको मौका दिया तो आप विरोध में खड़े हो गए। अरे ऐसा क्या है? और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में जो बिल लाया है उनके नेतृत्व की सरकार ने, वो उसी भावना को जो मातृत्व शक्ति 2023 से इंतजार कर रही है, उसकी उस भावना के अनुरूप, उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस संविधान संशोधन विधेयक को लाया है इस सदन में। और इसलिए हम विपक्ष से अपील करेंगे, हठ धर्मिता छोड़ दीजिए, हठ धर्मी मत बनिए, रास्ता मत खोजिए, इधर उधर बाएं दाएं जाने का रास्ता मत खोजिए। अगर आपने विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सच कहा है। अगले 20-25 वर्षों तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद जी 2005 से 2026 तक खामियाजा भुगत रहे हैं। और आप क्या बात करिए, कल प्रियंका जी बोल रही थी, आपने क्यों नहीं पास कराया? अरे प्रियंका जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस सदन में 4 बार यह प्रयास किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। आप विपक्ष में थे, आपने समर्थन नहीं किया और उसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। तो इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, इस चक्कर में मत पड़िए, उनसे झटका मारिए। और अगर उनके साथ सटे रहिएगा तो बिहार में इनका क्या हाल हुआ है मालूम है ना? 27 से 19 से 6 और उस 6 में भी 3 गो बाहर निकल गया है, अभी 3 गो बचे हैं। तो इसलिए इनका हसरोई होने वाला है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का और जो अन्य विधेयक आए हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 50% की आबादी के साथ न्याय करने का काम किया। इनको अगर भगवान सुबुद्धि दे, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको सुबुद्धि दीजिए ताकि जो आने वाले दंश हैं वर्षों तक उससे ये बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। Thank you, the Honorable Chairperson. We are opposing the entire three bills, and the reasons which I will speak later on. Madam, our Prime Minister has having a great quality. The quality is the moment he understands that next election he is going to lose the election, he changed the rules of game. इलेक्शन में हार जाएगा तो चलो, गेम को रूल जो है उसको चेंज कर दो, और चेंज करने के लिए रूल गेम को यही लिया है. इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग मोर देन दैट. द प्रेजेंट बिल्स आर अंडर डिस्कशन आर प्रोडक्ट ऑफ सच थॉट्स. मैडम, द प्लॉय ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, व्हाट दे आर सेइंग, वुमेन, दिस इज अ प्लॉय. Original plan is something different. That is delimitation, that is seat adjustment, that is the original plan. थोड़ा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सेंटीमेंट वुमेन का लगा दो. इस वुमेन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा. सीट बढ़ा दो, रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है. अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए. रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर. उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है. नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया. करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा. 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे. हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना. हिम्मत नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है. आप जानते हैं हम आंकड़ा बोलेंगे आपको. आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग पार्टी में भी नहीं किया है. आप लोग क्या करेंगे? अरे सुनिए, आपको पार्टी का बात सुनिए, आपको पार्टी का थोड़ा आंकड़ा हम दे देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आप लोग कितना कॉन्शियस अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन. वुमेन सुन लीजिए, आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%. राज्यसभा में आपको कितना है 106, वुमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98. आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं, और इधर आके बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति. अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर. हाँ, और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए. एआईटीसी लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%. नॉट ए सिंगल पार्टी इन इंडिया हैज गिवन इट. राज्यसभा में 39 मेंबर, 6 is the female, percentage is 46.15%.